ریڈیو سری نگر ہے، پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حزب اختلاف کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک مرتبہ پھر ہوئی متاثر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایل جی ملاقات کے تحت لوگوں کے مسائل اور سرکاری دفاتر کی سرگرمیوں کا لیا جائزہ۔ لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا دہرایا عزم۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دونوں روایتی راستوں سے رہی معطل۔ کل شام تک مجموعی طور پر 2,94,000 سے زائد یاتریوں نے گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن۔ ملک میں سرگرم کورونا مریضوں کی تعداد 1,35,700۔ جموں کشمیر میں آج مزید 397 کورونا مریضوں کی ہوئی نشاندہی۔ اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل اب سے تھوڑی دیر بعد ہوگا شروع۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام۔ کیونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر پھر سے عمل کریں، خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج حزب اختلاف کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے کارروائی میں بار بار خلل پڑا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ارکان نے نعرہ بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آنے کی کوشش کی اور کارروائی کو 2 بجے تک ملتوی کرنا پڑا۔ پہلے ملتوی کے بعد جب ایوان کی کارروائی 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کچھ بولنے کی کوشش کی، تاہم اسپیکر نے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد کانگریس، DMK اور دیگر ارکان نعرہ بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے۔ شور و غل کے بیچ اسپیکر نے کارروائی کو 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ راجیہ سبھا میں بھی مختلف معاملات کو لے کر حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے کارروائی کو 2 بجے تک ملتوی کرنا پڑا۔ راجیہ سبھا میں شور و غل کے بیچ ایوان کے لیڈر پیوش گوئل نے احتجاج کر رہے ارکان سے تلقین کی کہ وہ کارروائی کو احسن طریقے پر چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر کل بحث کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے ایوان کی کارروائی کو 12 بجے تک ملتوی کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سیکریٹریٹ میں ایل جی ملاقات پروگرام کے دوران لوگوں کی شکایات سنی اور نچلی سطح پر سرکاری دفاتر کی سرگرمیوں اور کام کاج کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ طرز حکمرانی کی بنیادی عناصر میں سے ایک لوگوں کو ترقی کے عمل میں حصہ دار بنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں شکایات کا فوری طور پر ازالہ کیا جانا جواب دہ اور مؤثر انتظامی ڈھانچے کا ثبوت ہے۔ ہماری مسلسل کوشش یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ایک عام شہری کے انٹرفیس کو کم سے کم کیا جائے اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے اصلاحاتی عمل کو جاری رکھا جائے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایل جی ملاقات نے شکایات کے تیز رفتار اور معیار دونوں کے لحاظ سے عوامی توقعات کو بڑھایا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وہ ہر سطح کے افسران سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بہترین ثقافت کو فروغ دیں گے اور شہریوں کی فلاح و بہبود افسران کا بنیادی کام ہونا چاہیے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج موسم کی خرابی کے چلتے دونوں روایتی راستوں سے معطل رہی اور کسی بھی یاتری کو نگون اور بالتل کے بنیادی کیمپوں سے گفا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے نمائندوں صابر ایوب اور تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ دونوں اطراف سے یاترا کے راستے پر مطلع ابر آلود ہے اور وقفے وقفے سے بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے۔ ادھر ہمارے نمائندے خورشید پڈو نے خبر دی ہے کہ آج جموں سے 21 گاڑیوں میں 458 یاتری پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہوئے۔ نمائندوں نے مزید کہا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نہار کے مقام پر پتھر گر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہو رہی ہے، تاہم شاہراہ پر گاڑیوں کی آواجائی جاری ہے۔ اس دوران کل شام تک مجموعی طور پر 2,94,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے۔ ملک میں اس وقت سرگرم کورونا مریضوں کی تعداد 1,35,699 ہے۔ صحت وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 14,900 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران 14,965 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں قومی سطح کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 2,04,34,03,676 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 397 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें से 275 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 122 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। श्रीनगर जिले से आज भी सबसे ज्यादा यानी 105 कोरोना मरीज सामने आए। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान मजीद 704 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 417 का ताल्लुक कश्मीर और 287 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इंतजामिया ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोविड मुखालिफ रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स मामलात पर नजर गुजर रखने और इस ताल्लुक से तशखीसी सहूलियात को वुसअत देने के लिए हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। यह फैसला वजारत सेहत के सेक्रेटरी की सदारत में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामलात दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक केरला और 1 का ताल्लुक दिल्ली से बताया जाता है। आकाशवाणी के साथ बात करते हुए नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि हुकूमत ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए 15 ICMR लेबोरेटरियों का एक नेटवर्क कायम किया है। सेक्रेटरी कबायली अमूर महकमा शाहिद इकबाल चौधरी, जो जिला शोपियां में तरक्कियात के नोडल ऑफिसर भी हैं, ने आज जल जीवन मिशन के तहत अमलाई जा रही मुतअद्दिद स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि जिला शोपियां के लिए 61 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं और 17 स्कीमें तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने डीसी शोपियां पर जोर दिया कि वो तमाम रुकावटों को दूर करके जल जीवन मिशन प्रोग्राम की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाएं, ताकि जिले की 100% आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया हो सके। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया बारिशों की वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, माल मवेशियों और फसलों को हुए नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुतासरा कुंबों को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने तबाहशुदा पुलों और सड़कों की फौरी तौर मरम्मत करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कठुआ में एक मकान दब जाने के नतीजे में 2 बच्चों के फौत होने पर भी सद्दे का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त गुनागो मुश्किलात से दुचार हैं और बकौल उनके जमीनी सतह पर तरक्की का कोई नामो निशान नहीं है और सड़कों की हालत नागुफ्तबे है। डूवेरी अनंतनाग के कई इलाकों में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। बड़गम जिले में मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया की तरफ से अमलाई जा रही स्कीमों से आम लोग बराह रास्त इस्तेफादा कर रहे हैं और इन स्कीमों की बदौलत लोगों के मियार जिंदगी में खतर का बेहतरी देखने को मिल रही है। इस हवाले से पेश है बड़गाम से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। बडगाम जिले में कैपेक्स बजट के तहत रवा माली साल के दौरान 2025 तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिनमें से 1852 प्रोजेक्ट मंजूर हुए, जबकि अभी तक 47.43 करोड़ रुपए इन तरक्याती प्रोजेक्टों पर रिलीज किए गए। जिले में जल जीवन मिशन के तहत 175 स्कीमों की खातिर 960 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जिले के लिए 7 वाटर टेस्टिंग लैब्स कायम किए गए हैं। जिले में पीएमजीएसवाई, नाबार्ड और सीआरएफ के तहत दर्जनों सड़क प्रोजेक्टों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिले में आयुष्मान भारत के तहत अभी तक करीब 70% आबादी में गोल्डन कार्ड फराहम किए गए हैं। अवामी हल्के अगरचे कई महकमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, तहम बकौल उनके कई महकमों जिनमें इंजीनियरिंग महकमे खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, टेंडरिंग प्रोसेस में काफी वक्त ले रहे हैं, जिससे प्रोजेक्टों की तकमील में रुकावटें हायल हो रही हैं। वक्त की अहम जरूरत है कि मुतल्लिका महकमे प्रोजेक्टों की तकमील को मुकर्रर वक्त पर ही यकीनी बनाएं, ताकि इन स्कीमों का वक्त पर और बेहतर ढंग से लोग इस्तेफादा कर सकें। खबरों के लिए मैं बडगाम से शौकत शाह। सत्येंद्र प्रकाश ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डीजी का ओहदा संभाल लिया है। वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस बैच 1988 के ऑफिसर हैं। इससे पहले वो प्रिंसिपल डीजी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ओहदे पर फाइज थे। ओहदा संभालने पर पीआईबी के आला अफसरों ने उनका खैर मकदम किया। अब पेश है कुछ मुख्तसर खबरें। सियाहती सरगर्मी को फरोग देने की गर्ज से महकमे सियाहत और अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज अहरबल में समर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ट्रैकिंग,
हेरिटेज वॉक, एंगलिंग मुकाबलों और साइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर नाज़िम सियाहत और डीसी कुलगाम भी मौजूद थे। डीसी जम्मू ने आज एक मीटिंग के दौरान जिला कैपेक्स बजट के तहत हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि रवां माली साल की पहली छमाही में 4055 काम हाथ में लिए गए, जिनमें से अब तक 53 कामों को मुकम्मल किया गया। डीसी ने मुतालिकीन को हिदायत दी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर तमाम कामों की टेंडरिंग करें ताकि इन कामों को मियादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जा सके। दरी असनद जिला इंतजामिया जम्मू की तरफ से जिले के बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से हम किनार कराने के लिए 2 माह तवील एम्प्लॉयमेंट मेला शुरू किया गया है। अनंतनाग में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज जिला तरक्याती कमीशन की सदारत में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला अफसरों के अलावा म्यूनिसिपल कमेटियों के सरबराहों ने भी शिरकत की। कुलगाम में भी आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से नौजवानों के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। भारत और वेस्ट इंडीज के माबैन दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे बेसेटे में वार्नर पार्क के मकाम पर खेला जाएगा। 5 मैचों की इस सीरीज में भारत को 1-0 की सबकत हासिल है। पहले मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 68 रनों से हरा दिया था। सीरीज का तीसरा मैच इसी ग्राउंड पर कल खेला जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और दीगर मामलात की वजह से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक मरतबा फिर हुई मुतासिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने LG मुलाकात के तहत लोगों के मसाइल और सरकारी दफातर की सरगर्मियों का लिया जायजा। लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का दोहराया अज़्म। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रिवायती रास्तों से रही मुअत्तल। कल शाम तक मजमूई तौर पर 2,94,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। मुल्क में सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद 1,35,700। जम्मू कश्मीर में आज मजीद 397 कोरोना मरीजों की हुई निशानदही। और भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल अब से थोड़ी देर बाद होगा शुरू। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।